Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to your today's session of current affairs. I am Drishti and today we are going to discuss a couple of topics which were in news from your section of polity and governance in past 1 week, right? Also we are going to discuss your Seize the Mains question, for which the video will be soon available, the answer discussion for which, right? I hope you guys have been listening to our videos and appearing for attempting the Seize the Mains questions that have been given, so that we can help you in your answer writing program. Also, the evaluation provided by our experts of team is entirely free of cost, so you can get your benefit, you can have the maximum benefit from that section, right? So let's get started. Today we are going to discuss a couple of important topics. Now your first topic is states may have Niti Aayog like bodies soon, right? So all the states, Niti Aayog is a central level institutions similar to Niti Aayog. All the states might soon have planning bodies. Planning commission was scrapped, as you all know. The Niti Aayog came into existence, right? Similarly, there might be state level institutions for planning and development, and that has been a burning push from this government, so that the self-governance, the idea of self-governance, competitive plus cooperative federalism can be realized as soon as possible. Then new adoption rules have been in news. There were a couple of things about juveniles, also CARA. We are going to discuss that in detail. And then your third topic for today is about EWS quota, economically weaker sections quota. Now Supreme Court's, there is going to be a 3-question test for validity of 10% economically weaker sections quota, and Supreme Court wants to determine whether ये जो 10% कोटा है, does that go against the spirit of basic structure doctrine of the Constitution of India or not, right? States may have Niti Aayog like bodies soon. Why this was in news? Recently जो Niti Aayog है, they will handhold each state ताकि they will come up with similar bodies which will replace their planning boards for faster and inclusive economic growth. Because India का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है to be a developed nation by 2047, right? To be a developed nation by 2047. Now aim क्या है? Initially it aims for 8 to 10 states to set up such bodies before reaching out till 2023. 4 states हैं जिसमें Karnataka, UP, Madhya Pradesh and Assam, they have already begun the work in this regard, while Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and Gujarat, they will likely begin work soon. This is in the pipeline. Now if we talk about function of SIT, so SIT will guide states in the policy formulation, take up monitoring and evaluation of government policies jitni bhi hai, right? Also and programs, and suggest better technological models which would help you in the implementation of these schemes. Now if you talk about challenges which are faced by the states currently, they are, most of the states, they have done very little in this area to rejuvenate their planning departments, boards, etc., which earlier dealt with planning commission and prepared a parallel program, right, with 5-year plans. This has been one of the major lacunae. Then planning departments की अगर हम बात करें, तो in most of the states they are almost defunct, they are non-functional, and उनका existence, they have no clarity over work कि हमें काम कैसे करना है, किस direction में, they are directionless. So that has come out as one of the major problems. If we talk about the significance of the move, so this will increase the role of states in GDP. This move will recognize that except for sectors like defense, railways and highways, national GDP जो growth है, it is an aggregation of state rates of growth. Health की बात करें आप, health, education and skilling, they are held primarily with the state government. आपके पास Schedule 7 में 2 लिस्ट आती हैं, state list and union list. I hope you have read it in polity and governance. So वहाँ से you can realize which topics come under say subject and which topics come under union list. Now sustained economy की अगर हम बात करें, sustained economic growth की बात करें, तो state government's role is critical in
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी चीज़ें हैं विच बूस्ट अप योर इकोनॉमी. सो स्टेट गवर्नमेंट का रोल इज़ phenomenal, very central to all of these, and इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है. स्टेट सपोर्ट मिशन की बात करें तो इट विल लाइकली एक्सटेंड सपोर्ट टू ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIMs, IITs टू फुलफिल द एम्बिशियस टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047. नाउ लेटरल एंट्री की बात करो अगर आप, तो लेटरल एंट्री जो है प्रोफेशनल्स की, इट विल बी एनकरेज्ड इन SITs टू अंडरटेक हाई क्वालिटी एनालिटिकल वर्क एंड पॉलिसी जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो. If you talk about the way forward, center has already set up 10 working groups under various secretaries to set those socio-economic goals जहाँ से हम achieve करेंगे sustainable, inclusive and job creating high growth while addressing जो आपके environmental aspects हैं, carbon footprint and energy security, right? So this is your topic. This brings an end to your this topic. I hope जो आपका seize the means का आंसर है, you will add on the knowledge you already have about Niti Aayog and simultaneously write its answer. Okay, now your second topic for today is new adoption rules. So there has been a confusion over implementation of new adoption rules, basically that require transfer of adoption petitions जो हैं from courts to district magistrates. ठीक है, तो there has a little bit of ambiguity over जितने भी rules आए हैं. Amendments की अगर हम बात करें, what have been the recent amendments, तो Parliament in July 2021 passed Juvenile Justice, जिसका मीन है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021. ठीक है, देयर आफ्टर अगर हम बात करें अमेंडमेंट्स टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन मॉडल रूल्स की, तो इन 2016 दे वर नोटिफाइड. रूल क्या स्टेट करते हैं? रूल स्टेट करते हैं दैट केसेस दैट आर पर्टेनिंग टू अडॉप्शन मैटर्स, केसेस दैट आर पर्टेनिंग टू अडॉप्शन मैटर्स पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स, दे शैल स्टैंड ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन हैज़ कम इन लाइन, उस दिन से जितने भी केसेस कोर्ट के सामने हैं, दे विल डायरेक्टली बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द जो आपका पर्टिकुलर एरिया है उसके. ठीक है, रूल्स ये स्टेट करते हैं, अमेंडमेंट ये स्टेट करती है. पर्पस क्या था बिल का? पर्पस था कि प्रिवेंट करेंगे हम कोर्ट द्वारा जो डिलेज होते हैं. कोर्ट का डिले क्यों है? डेट्स नहीं है, जुडिशरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है. ठीक है, डेट्स नहीं आ रही हैं, दोनों पार्टीज प्रेजेंट नहीं है, जो भी रीजंस व्हाटसोएवर है उनकी वजह से देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ डिले इन जो भी आपका डिसीजन मेकिंग है उसमें. सो प्रिवेंट दैट डिले इन द डिसीजन मेकिंग, उसको देयर हैव बिन अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस. नाउ simultaneously what has happened, there has been a ambiguity that has been created. Absence है एक प्रॉपर एक्ट की, अडॉप्शन ऑर्डर की, जहाँ पे पेरेंट्स कैंट ऑब्टेन बर्थ सर्टिफिकेट्स फॉर अडॉप्टीज, जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स जितने एडमिशन्स होते हैं उनके, सो उनकी स्कूलिंग इम्पैक्ट होती है. एक केस में पेरेंट्स को, अडॉप्टिव पेरेंट्स को, दे हैड टू एडमिट देयर चाइल्ड टू अ हॉस्पिटल, बट वहाँ पे दे कैन नॉट येट क्लेम अ हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज देर आर सो मैनी लूप होल्स. जो आपका प्रेजेंट सिस्टम है उसमें एक प्रॉपर डिज़ाइन फ्रेमवर्क नहीं है इस पूरी चीज़ के लिए. नाउ इन केस ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शंस बाय फॉरेनर्स और NRIs who live abroad, जो पेरेंट्स हैं दे कैन नॉट टेक देयर चाइल्ड आउटसाइड कंट्री विदाउट कोर्ट ऑर्डर एंड अ पासपोर्ट. तो एक ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है. नाउ जर्नी देख लेते हैं एक बार, जर्नी कैसे चली. जो JJ एक्ट है, इट वॉज पास्ड ऑन September 1. न्यू रूल्स क्या कहते हैं? दे से अडॉप्शन केसेस दैट आर पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स दे शैल स्टैंड ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स. जो मैंने आपको बताया, आइडिया क्या था? हेस्टन जो अडॉप्टिव प्रोसेस. लॉयर्स जो एक्टिविस्ट हैं, दे से कि नीदर DMs नॉर जजेस आर अवेयर ऑफ द न्यू रूल्स बिकॉज क्लैरिटी नहीं है. everyone knows, see they are in the system, they know something has been passed, but ये पूरे rules के ऊपर there is no clarity as such कि करना क्या है. Now कारा का जो official है, they say 1000 adoption cases they are right now pending before courts. So 1000 बच्चों का अगर आप देखो तो जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है. This has come out as a major issue. अगर आप related issues की बात करो, इसके साथ और related issues क्या आते हैं? So delays.
अडॉप्शन में डिले हो जाता है। पेरेंट्स एंड अडॉप्शन एजेंसीज दोनों वरिड हैं, एक्टिविस्ट ऑल्सो वरिड हैं, दिस कुड लीड टू फर्दर डिले इन द टोटलिटी ऑफ प्रोसीजर। ऑलरेडी बड़ा मीनियल सा प्रोसीजर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, एंड दिस ऑल कुड लीड टू फर्दर डिलेज। कन्फ्लिक्ट आ सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कन्फ्लिक्ट आ सकता है। कन्फ्लिक्ट कैसे आएगा? इट इज़ एन अनॉमली ऑन द लेजिस्लेचर फ्रंट, एज अडॉप्शन जो है दिस इज गवर्न्ड बाय हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। अगेन इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वाइल जो ऑर्फन्स के साथ या पूरा ऑर्फनेज या अडॉप्शन का देखता है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोनों की मिनिस्ट्री एक नहीं है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है उसके अंदर। अगर कोई कोताही होती है तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन कम इन टू ट्रबल, ठीक है। ऑल्सो इट कैन गिव राइज टू सम अननोन अनसीन पैरेलल प्रॉब्लम्स, एक वो इशू निकल के आ रहा है। प्रोसेस लेंदी बहुत है। अडॉप्शंस तो अगर आप देखो इंडिया में दे आर इन्फेमस फॉर बीइंग लेंदी प्रोसेसेस, जिसमें लग जाते हैं राउंड अबाउट 3 साल, बिकॉज 2188 चिल्ड्रन जो हैं दे आर अवेलेबल फॉर अडॉप्शन एज पर लेटेस्ट फिगर्स। नियरली 31,000 जो पेरेंट्स हैं दे आर वेटिंग। सो अगर आप रेशियो देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द रेशियो। नाउ ट्रैफिकिंग की बात करें आप तो देयर द ट्रैफिकिंग ऑफ सच चिल्ड्रन इज अ चैलेंज, स्पेशली जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं, ऑल्सो जो आपके एक्सट्रीम गरीब स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, ठीक है। स्पेशली जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसकी वजह से अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन सफ़र बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट एवर कीप्स ऑन हैपनिंग इन दीज स्टेट्स, राइट। नाउ फिर इमोशनल ट्रॉमा आता है, चिल्ड्रन हु हैव फेस्ड क्राइसिस, ठीक है, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स हो गया, सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स हो गया ड्यू टू डेथ, डिजर्शन, इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा निकल के आता है। देन अडॉप्शन लिमिटेड है बिकॉज क्रोर्स ऑफ चिल्ड्रन जो हैं दे कैन नॉट बिकम लीगली अडॉप्टेबल बिकॉज गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है। इंटर कंट्री अडॉप्शन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बिकॉज सिटीजनशिप का, नॉन सिटीजनशिप का। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी अनदर मिनिस्ट्री है जो आपकी सिटीजनशिप देखती है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कौन सी मिनिस्ट्री आपकी सिटीजनशिप रूल्स देखती है, तो इवन दैट गेट्स इन्वॉल्व। सो नाउ इट्स अ टसल बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द अदर मिनिस्ट्री, राइट, जिसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नाउ एक वहाँ से टसल निकल आता है, पूरे प्रोसेस से निकल के क्या आता है? पूरे प्रोसेस से निकल के आता है द इंस्टेंस ऑफ इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर, जिसमें मेनी चिल्ड्रन जो हैं दे सीक शेल्टर्स, जिनको गुड जॉब चाहिए, पर मोस्ट ऑफ देम को केयर एंड अडॉप्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दे सफ़र अनबियरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप देखो इसके लिए वे अहेड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो courts they should be allowed to close adoption cases that have already been brought before them, and जितनी भी fresh petitions हैं जो 1 सितंबर से हैं they should be sent to your district magistrates ताकि कोई भी तरह की inconvenience को avoid करा जा सके। Now if you talk about laws that are related to adoption in India, तो to follow legal route जो भी concerned citizen है they can call this number 1098 to report a child जो abandoned है या orphan है। Now citizens they follow, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 या JJ एक्ट ऑफ 2015 to adopt any child under the custody and guardianship, एंड ये आता है गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 के अंदर। सेक्शन 45 की बात करें अगर हम JJ एक्ट की, तो ये प्रोवाइड करता है कि हम स्पॉन्सर भी कर सकते हैं बच्चे को एंड टू सेंड द चिल्ड्रन फॉर इंटर्नशिप। नाउ जुलाई 2018 में JJ एक्ट को अमेंड करा गया एंड it was enabled a speedier adoption of children. Prospective parents जो हैं who wish to adopt, they will not be required to make several rounds to courts to seek an adoption order, as जो DM हैं या district collectors हैं they will be authorized to do so. All child care institutions हैं जो CCIs हैं they will have to get registered and linked to जो आपकी कारा है, जो आपकी Children Adoption Resource Authority है उसको, ठीक है।
कारा की बात करें अगर हम, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की, तो इट वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटोरी बॉडी, ठीक है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। फंक्शन क्या है, इट इज द नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, एंड इसका मैंडेट है कि ये मॉनिटर करेगी एंड रेगुलेट करेगी जो इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस हैं दोनों को, ठीक है। तो कारा का ये रूल है। अगेन कारा और क्या करती है, इट डील्स विद अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड अडॉप्शन एजेंसीज। इसको डेजिग्नेट करा गया है एज अ सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री अडॉप्शंस। कन्वेंशन किसका आता है, इन लाइन विद जो आपके प्रोविजंस हैं हेग कन्वेंशंस ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शंस ऑफ 1993 व्हिच वाज रैटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डिटेल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गेट टू थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। लास्ट टॉपिक क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट जो है एक 3 क्वेश्चन टेस्ट को की वैलिडिटी को चेक करेगा विच चेक्स अपॉन द 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा ऑफ द सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी 103rd जिसने इंट्रोड्यूस करा था 10% कोटा। इसको चेक करेगा कि वेदर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कहीं उसके अगेंस्ट तो नहीं जाता, उसको डिफाई तो नहीं करता। नाउ Who are EWS? पहला क्वेश्चन ये आता है। सो अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी अगर आप देखो, देयर आर सम कास्ट दैट आर इकोनॉमिकली पुअर बट नॉट सोशली बैकवर्ड, ठीक है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कास्ट बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन जिसको हम रिजर्वेशन भी बोलते हैं, एंड जनरली दे आर नोन एज जनरल कैटेगरी पीपल. They are not entitled to any reservations like SC, STs and OBCs. Now Government of India ने इनको बोला EWS economically weaker sections. Now 103 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसने इंसर्ट करे आर्टिकल 15 पार्ट 6 एंड 16 पार्ट 6 इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन्होंने प्रोवाइड करा 10% रिजर्वेशन टू EWS कोटा अदर देन बैकवर्ड क्लासेस SCs एंड STs इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इनिशियल रिक्रूटमेंट्स जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की है उसके अंडर, ठीक है। नाउ अगर आप पूरा देखो, अमेंडमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की है टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस इकोनॉमिक जो आपके क्राइटेरियन है ऑफ बैकवर्डनेस उसके बेसिस पे। आर्टिकल 15 है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ आर्टिकल 16 गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एडिशनल क्लॉज देखो, इट गेव पार्लियामेंट द पावर टू मेक स्पेशल लॉज फॉर इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस लाइक जैसे ये करता है SC, ST एंड OBC के लिए। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमेटी रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं SR साइनो कमीशन। जो EWS रिजर्वेशन है इट वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमीशन हेडेड बाय अ मेजर जनरल रिटायर्ड SR साइनो, ठीक है। कमीशन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ इसका मार्च 2005 में एंड इन्होंने अपनी सबमिट करी है रिपोर्ट राउंड अबाउट 5 साल में जुलाई 2010 में। साइनो कमीशन क्या बोलता है, साइनो कमीशन ने कहा कि जो BPL फैमिलीज हैं विद इन जनरल कास्ट दे आर नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो जिनकी एनुअल सोर्सेज ऑफ इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट दे शुड कम अंडर योर EWS दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। नाउ चैलेंज क्यों आया अमेंडमेंट के लिए, जो अमेंडमेंट करा गया 103rd इसको चैलेंज क्यों करा गया, ये कहा जा रहा है वायलेट्स जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पुट फॉरवर्ड इन केशवानंदा भारती केस, ठीक है। देयर हैव बीन एन नंबर ऑफ केसेस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, आई होप यू नो। नाउ ये कहा जा रहा है कि इट वायलेट्स जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ऑफ 1992 व्हिच वाज in the case of इंदिरा स्वाने एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसने अपहेल्ड करी थी मंडल रिपोर्ट एंड जो रिजर्वेशंस की अपर कैपिंग है उसको सेट करा था 50%। नाउ कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा था कि बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस। इकोनॉमी जो है दैट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरियन फॉर बैकवर्डनेस। नाउ इशू ऑफ प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इन्होंने क्या आर्ग्यू करा है, दे हैव आर्ग्यूड दैट देयर फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एंड ट्रेड अ प्रोफेशन इज वायलेटेड जब स्टेट इनको कंपेल करती है टू एडमिट
एंड टू इम्प्लीमेंट जो अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी है इन इंस्टीट्यूट्स में, एंड एडमिट द स्टूडेंट्स ऑन एनी अदर क्राइटेरिया दैन मेरिट। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज निकल के आए हैं एंड कोर्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या कहती है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आज के जितने हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं वो आप सबको क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टेकिंग देम अप ऑन नेक्स्ट क्लास। We'll meet on Monday again. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye. And keep writing your Seize the Mains questions for the discussion for which will be available to you soon. Bye bye.